With reverence and love, I offer myself at the divine lotus feet of our most beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Brothers and sisters, respected elders, Sai Ram to all of you. It is indeed a distinct privilege to welcome and introduce a truly remarkable person who requires no introduction. Introducing a phenomenon such as Padma Shri Anup Jalota is very difficult, because no matter what you say, you will always end up missing something. Do we introduce him using one of the many titles that has been conferred on him, namely Bhajan Samrat, or the Emperor of Bhajans? Or do we introduce him as a person, as a man of letters who has been blessed with many awards, including the 4th highest Indian civilian award, the Padma Shri, the Globe Award in 2010, the annual Globe Award, and an award from the British Parliament, the House of Commons? Do we introduce him as a person who has rendered over 5,000 concerts in 300 cities around the world, a person who has composed and sung more than 2,000 bhajans in over 200 very successful albums? Instead, I prefer to present Shri Anup Jalota to all of you today as an ardent devotee of our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Shri Anupji met Baba as a 10-year-old boy 48 years ago in Lucknow. And after that first meeting, Swami requested both Anupji and his father, Padma Shri Purushottam Das Jalota ji, to visit Puttaparthi, and they ended up staying there for 1 week, singing in Swami's divine presence. He has sung on innumerable occasions in Swami's presence, for the 50th birthday, for the recent 86th birthday, in many places wherever Baba visited in India. He has also performed at many prestigious venues, including Lincoln Center, Madison Square Garden, and the Esplanade. But he considers singing in Baba's presence in Prasanthi Nilayam as the greatest experience and opportunity of his lifetime. Brothers and sisters, he is here on a very brief visit to share his inspiring journey in the divine fold of our beloved Swami. And I request you to join me in giving a very loving welcome to Shri Anup Jalota. Jai Sai Ram. I met Baba for the first time about half century ago, 50 years ago, in Lucknow. The governor of Uttar Pradesh those days was a South Indian. His name was Mr. Rama Rao. He was Baba's devotee. So Baba was invited by him. He was staying in governor's house. And my father was, those days, a very renowned classical singer of Uttar Pradesh and known as Rajya Gayak. So whoever dignitary used to come and visit the state, my father was being invited and asked to sing and give a concert in honor of them. So when Baba came, so governor, he called my father that Satya Sai Baba has come from Puttaparthi, and I am inviting the whole city. The whole city will be blessed. People didn't know about Baba those days. So me, my father, some musicians,
We went and sat in front of Governor and Baba. There were hardly 50, 60 people came. People didn't know about Baba. And we were very, very attracted, very much influenced by his presence and his knowledge, what he was talking, his discourse and all that. After we finished singing, Baba called us and said, you must come to Puttaparthi. And we didn't know where is Puttaparthi. The name was not heard. Then Baba asked Governor that send them to Puttaparthi. And my father, his arrangements were done, he went to Puttaparthi. There were only 2 rooms in Puttaparthi. 2 rooms in the ashram. In one room Baba was staying, and one room for the guest. Together. So in one room my father was staying, and both get up in the morning together, having tea, singing together, doing riyaz together. Because Baba sings classical, very good singing. His knowledge of ragas are tremendous. That's why most of the classical singers, they go and sit with him and perform in front of him. He has great knowledge of ragas. So I remember since my childhood, he was calling me Chote Baba. Chote Baba, how are you? तुम्हारी तो शक्ल भी मुझसे मिलती है. ऐसा थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोलते थे. तुम्हारा तो शक्ल भी मिलता है. बाबा तुमको बहुत प्यार करता है. मुझे गले लगाते थे जब मैं मिलता था. तो फिर पुट्टपर्ती धीरे धीरे बनता गया और बहुत भव्यता जब हो गई, जब एक स्तूप बनाया गया, सर्वधर्म स्तूपा, तो बाबा ने मुझे कहा कि तुम आओ और वहां कोई नया गाना कंपोज करके लाओ, वो गाया जाए. तो मिस्टर पांडुरंग दीक्षित ही कंपोज द सॉन्ग सुमर मनुआ. सुमर मनुआ, सुमर मनुआ, सुमर रे पंच तत्व सुविचार. So I think I sang the number, same bhajan, at the time of inauguration of Stupa. Baba loved the song so much, he liked it so much. He immediately called Manoj Kumar, who was also sitting there, that I want this song in the film, Shirdi Ke Sai Baba. This song is beautiful. Then Manoj Kumar said, but this is a Stupa song. He said, no, whatever it is, I want this song in the movie. This song is... And the song became so popular in the movie. After the movie got over, I could hear people humming that song and coming out of the theatre. It became so popular. So in my life, Baba is everybody's godfather, but my godfather in music also. Because he gave me the first introduction as a singer in movies. Also in many functions. He used to call me everywhere, wherever he used to come and sing. I remember once he was in Ooty. There used to be a small ashram in Ooty. I think it's not there anymore, but those days, small ashram and a nice guest house, 3-4 rooms. So he wanted me to come and teach some of the students exclusively, stay there for a week and teach them music. So I did that. So when I was going back, so he called me, you're going? I said, yes, okay. It was nice 7 days, you
taught everybody well, you sang for me. And he gave me 10,000 rupees cash. Then I said, Baba, you have given everything. How come you're giving me cash? He said, तुम कुछ काम छोड़ के आया होगा, अपना नुकसान हुआ होगा, तो पैसा लेके जाओ. तो इतना ध्यान रखते थे, नहीं तो कौन उनके सामने मांग सकता, सब कुछ मिल जाता उनसे सामने. नहीं तुम नुकसान करके आया अपना. तो बाबा के प्रेजेंस में, बाबा के एसोसिएशन में कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिल जाती हैं जो हमारी फैमिली ने बहुत सीखी हैं, कि सब कुछ होने के बाद भी नम्र रहना. बाबा एक डिसिप्लिन सिखा देते हैं, बहुत डिसिप्लिन सिखा देते हैं. पंक्चुअलिटी तो ऐसी सिखा देते हैं कि पूछे नहीं. एक मिनट का हिसाब होता है वहां पुट्टपर्ती में. तो जो वहां एक बार चला जाता है, उसके जीवन में एक समय का क्या उपयोग है, समय का क्या महत्व है, ये उसके अंदर आ जाता है. तो मैं बचपन में सोचता था, मुझे छोटे बाबा क्यों कहते हैं. उन दिनों मेरे थोड़े और बड़े बाल होते थे, तो बड़े बाल मेरे पकड़ लेते थे ऐसे कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके बड़े बाल नहीं होते, छोटे होते हैं. लेकिन तुम तो म्यूजिशियन है ना, तो चलेगा तुमको. फिर छोड़ देते थे प्यार से. तो मैं सोचता था ये छोटे बाबा कहते हैं. वहां पुट्टपर्ती में भी सब लोग मुझे कहने लगे, देखो बाबा तुमको छोटे बाबा बोलते हैं. तो उसका राज जो था वो उनके जाने के बाद मुझे पता लगा कि क्यों कहते थे. कि कुछ लोग मेरे पास आए बॉम्बे में कि जी हम फिल्म बना रहे हैं सत्य साईं बाबा के ऊपर, और उस फिल्म में हम चाहते हैं कि आप सत्य साईं बाबा का रोल करिए. और वो फिल्म ऑलरेडी, ये देखिए, इट्स मी. तो फिल्म 60% कंप्लीट हो चुकी है, थोड़े दिन की शूटिंग और है. कितना बाबा का ग्रेस होगा जो उन्होंने मुझे बिना उनके आशीर्वाद के संभव नहीं है. तो मुझे कहते थे तुम्हारी तो शक्ल मिलती है. तो होते यहां तक उन्होंने कर दिया कि मुझे बना दिया कि जाओ तुम मेरा रोल करो. और मैंने उनको इतना ऑब्जर्व किया, मैंने उनको इतना देखा, उनके साथ मैं इतना रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ पता है. उनका चलना फिरना, बात करना, बैठना, गाना, सबको किस तरह से प्यार करते. एक बार उनका फोन आया बॉम्बे, इस बात को कुछ 25 साल हो गए. मुझे कहने लगे कि आई एम कमिंग टुमारो. वो मैसेज हमको भिजवाते थे इंदुलाल शाह जी के थ्रू. इंदुलाल शाह सब धर्म क्षेत्र बंबई का सब मैनेजमेंट देखते हैं. तो कमिंग टुमारो. मैंने कहा श्योर. मैंने कहा क्या है यहाँ. तो कहते हैं मुझे कुछ 7-8 म्यूजिशियंस को बैठ के अपने हाथ से खाना खिलाना है. पता नहीं उनके मन में क्या है कि मैं कुछ लोगों को खाना, उसमें उन्होंने लिस्ट दी थी किसको किसको बैठा के खाना खिलाना चाहते. उसमें पंडित रविशंकर, उसमें पंडित भीमसेन जोशी, उसमें यशुदास जी, उसमें मैं, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल. तो इस तरह कोई 7-8, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, इन सबको उन्होंने बुलाया. कहते बस मैं सबको खाना खिलाने आ रहा हूं. और मुझे याद है कि लंच पे बुलाया था, लंच पे बैठे थे हम लोग. अपने हाथ से एक एक को राइस दिया है, एक एक को सब्जी दी है, एक एक को सांभर दिया है, एक एक को मिठाई दी है. अपने हाथ से सबको परोसा है. और बस कहते मैं जा रहा हूं वापस. दूसरे दिन सुबह वापस चले गए. तो इतना प्रेम म्यूजिशियंस के लिए उनके मन में था, इतना ज्यादा प्रेम.
जो भी म्यूजिशियन वहां गाने आता था उसको तो छोड़ते ही नहीं थे, पास में बैठा के रखते थे, हमेशा ब्लेस कर, क्योंकि उनका ये कहना था कि भगवान की जो वाणी है वो संगीत के माध्यम से सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। भगवान की जो वाणी है उसका महत्व केवल बोलने से लोग नहीं समझेंगे, गाने से समझेंगे। जब उसको गाने में लपेट के लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो लोगों को उससे प्यार हो जाएगा। शायद यही वजह है कि इतने सालों से मैं भजन गा रहा हूं, गाता ही जा रहा हूं, सुन रहे लोग आशीर्वाद देते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत सुनते हैं। बाबा के अंदर शिक्षा और सेवा, इन दो चीजों के लिए बहुत मन में स्थान था, बहुत स्थान था कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, जो भी है 100% लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। चिकित्सा सबकी होनी चाहिए। कैसा हॉस्पिटल बनाया पुट्टपर्थी, उस हॉस्पिटल में सब कुछ है, सिर्फ बिलिंग सेक्शन नहीं है, सब कुछ है। एक सेक्शन मिसिंग है, बिलिंग सेक्शन। आप इधर से जाइए, इलाज कराइए, उस दरवाजे से बाहर चले जाइए। बाकी हॉस्पिटल में पहले बिलिंग सेक्शन होता है कि डिपॉजिट करिए फिर अंदर जाइए। वहां इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आप बाईपास कराइए, हार्ट का बाईपास होता है, कोई बिल नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं। कितने लोगों ने कराया, लाइन लगी है वहां, सबका हो रहा है। चिकित्सा और शिक्षा, और मेरे ख्याल से यही दो चीजें हैं जो हमारे भारत में जिसकी थोड़ी कमी है, और उसी कमी को बाबा पूरा कर रहे हैं। आज से करीब 17-18 साल पहले भगवत बाबा ने सोचा कि आंध्र प्रदेश में 1000 गांव को पानी देंगे जहां पानी नहीं पहुंचता। अभी 1000 गांव को पानी देने को मजाक काम है, सरकार नहीं कर पाती है, उन्होंने कहा मैं करूंगा। और हम लोगों को सबको खबर भेजी कि तुम लोग सब इस सेवा में जुट जाओ। मुझे याद है कि मैं उनका ये संदेश लेके यूरोप गया, स्पेन गया, स्पेशली स्पेन में मैंने कुछ कॉन्सर्ट्स किए। वहां लोगों को बताया कि आप लोग जितने डिवोटीज हैं सब पुट्टपर्थी आके और बाबा के सामने ये शपथ लीजिए कि इस सेवा में आप, इस सेवा को पूरा करने में आप योगदान देंगे। हो गया। सरकार को कितना आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया, इतने गांव को पानी पहुंच रहा है। हमारे देश ऐसी ही शक्तियों के कारण चलता है। ऐसी ही शक्तियां हमारे देश में हम सबके अंदर एक विश्वास जगाती हैं कि हम क्यों संसार में और सारे देशों से उत्तम हैं, बेटर हैं। शायद इसीलिए हैं कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं। श्योर मोर ऑफ इंग्लिश। So we have so many saints, so many messengers sent by the God. And they are the people who are spreading love, spreading education, service, free treatment, so much love. I don't know how many people have visited Puttaparthi. About half or more than that. How nice. And I don't know why when people reach close to Puttaparthi, they become very disciplined. When they leave Puttaparthi,
they leave the discipline there. This is what Baba used to say, that keep me always with you, not just when you sit in the temple or just you come to Puttaparthi. Feel me everywhere, feel me all the time. Puttaparthi is not just the place where Baba lives. Baba lives everywhere. Baba is here. That's why we all are here and feeling His presence. After singing in Baba's movie, Shirdi Ke Sai Baba, I was offered so many film songs. So many music directors used to call me, come and sing in films. I never enjoyed after that singing in films. That was the only movie I loved, singing in movies. Maybe there was a different grace and different blessings, some divine experience. After that, I never enjoyed singing in movies, and I created my field in devotional renderings. And this field is so divine, so beautiful. Singing bhajans. Because more than the audience, I enjoy first. I get tears first, then I give to my audience. So the tears of devotion, tears of that feeling, first I feel. So I'm the receiver first. So I enjoy more than my audience, more than my listener. This time, my visit to US is not really for concerts in this country. I'm giving few concerts in Canada, but not here this time. But I have just told Sundar that in September, October, sometime when I come, then we can have one concert for Sai devotees singing all. So I can sing my various Sai bhajans which I've been singing since last 45 years. Few songs from the movie Satya Sai Baba. Those also I will perform that time. This movie will be released in November. We are trying to release it on Baba's birthday on 23rd of November this year. Because 60% done, so it will be over in 2 months. There are other artists like Jackie Shroff and many known faces are working with me in the movie. And it's a fantastic experience working as Baba. जितने भी लोग शूटिंग में आते हैं, the whole crowd, they all come and touch my feet, Baba, because I'm in that get-up. Then I tell them I'm not Baba, but they all will come and then they'll start working. So the thing is that His blessings, कहते हैं ना कोई भविष्यवाणी देखता है, भविष्यवाणी कर देता है, तो बाबा ने उन दोनों भविष्यवाणी कर दी थी, छोटे बाबा, तो छोटे बाबा यहां बना दिया. I know most of you have something in mind that I must sing for you today. और मेरी भी आदत है I also never leave any place without singing. That's my habit too. राम नाम अति मीठा है, साईं नाम अति मीठा है,
राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। और इसमें जो शिक्षा है, जो मैसेज है, इस शिक्षा को जो अपने जीवन में उतार ले, उसका कल्याण निश्चित है। ध्यान दीजिएगा, यही बाबा ने हम लोगों को सिखाया। जिस घर में अंधकार, जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आइए सब मिलके गाएंगे। सीताराम 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 कहिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ऊपर, मैं और बाबा, बीच में पंडित भीमसेन जोशी हैं, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी। ये उसी समय की पिक्चर है जब बाबा हम लोगों को खाना खिलाने आए थे। आधे नाम पे आ जाते, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। दिख जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। दिख जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी, कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बुला के देख ले, बुला के देख ले।
वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं तेरा द्वार ना ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर ना सका। तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर ना सका। हर पल हर क्षण चलता रहता संग्राम यही मन के भीतर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। साईं राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय साईं राम। जय सिया राम बोलो, जय साईं राम। साईं राम, जय साईं राम। साईं राम, जय साईं राम। साईं राम, जय साईं राम। जय साईं राम। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लगन। ऐसी लागी 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 रे लगन। एक बार मुझे बाबा ने कहा कि ये लागी लगन गाना मुझको सिखा दो। मैंने कहा बाबा कैसी बात करते? कहते मैं सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, एक बार सामने सिखा दो। फिर मैंने उनके जितने स्टूडेंट्स वहाँ के बच्चों को भजन सिखाया, बैठा के ऐसी लागन भी सिखाया, और बाबा ने भी बैठ के सीखा, तो साथ में गाया सब। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली
हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी मीरा। वो तो गली गली महलों में कली बन के जुगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन। गमरानी सारे साजा मदनी सारे सारे साधा राम रे रे गा मादा मगरे रे। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे। एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक
एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, नी धनि मधम गम गरे गरे गधर नि गरे धनि धरे 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 नि धरे धरे धनि धरे दे गम धनि धनि धरे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम सीताराम, 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 बोलो श्याम राधे श्याम, 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 बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो जय जय साईं राम, बोलो जय जय शिरडी राम, बोलो जय जय साईं राम, बोलो जय जय शिरडी राम, बोलो जय जय साईं 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 राम। एक भजन और सुनाता हूं, फिर गाते गाते सब जाएंगे। साईं बाबा बोलो, करीब 35 साल पहले ये गाना, और भी ज्यादा शायद, मैंने मोहम्मद रफी साहब ने फिल्म शिरडी के साईं बाबा में गाया था। साईं बाबा बोलो बोलो बोलो, साईं बाबा बोलो, डगमग जग ये डोल रहा है, डगमग जग ये डोल रहा है, डगमग जग ये डोल रहा है, आसन से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। आंखें सूखी मन रोता है, बाबा हमारा क्यों सोता है, खोल के
साईं हमारे अपनी आंखें खोलो, साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो, साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो, साईं बाबा 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 बोलो। तू तो रहमत खुदा की साईं, तू तो मोहब्बत खुदा की साईं, तू तो कुदरत खुदा की साईं, तू तो सूरत खुदा की साईं, तुझ बिन जीवन जहर है साईं, आबे ज़मज़म घोलो, अल्लाह साईं बोलो, मौला साईं बोलो, अल्लाह साईं बोलो, मौला साईं बोलो, नानक साईं बोलो, गोबिंद साईं बोलो, नानक साईं बोलो, गोबिंद साईं बोलो, साईं बाबा 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 बोलो, साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो, साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं राम बोलो, साईं राम बोलो, साईं राम बोलो, साईं राम बोलो, साईं बाबा बोलो, शिरडी बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, शिरडी बाबा बोलो, शिरडी बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, शिरडी बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो, साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो। Jai Sai Ram, and many more evenings to come like this. This is just the beginning. Thanks very much for spending some time with me. I feel charged when I speak about Baba. My battery gets charged. I used to tell Baba always whenever I was there, Baba, I just come here to charge my batteries. When I sit with you, when I talk to you, so much knowledge. Once I was going to record the whole Bhagavad Gita. So I thought to go to him first, because he speaks so much about Gita, Bhagavad Gita, so much knowledge, so much he knows about Bhagavad Gita. So I went to him, and the only thing I asked him, Baba, I'm going to sing Bhagavad Gita, so I want to know the real meaning in short. What really Bhagavad Gita is preaching us, because I have to sing it. So one cannot really recite unless we know the depth.
He said, it is so simple. There are 700 shlokas, 700 couplets. I said, 700? So it's very difficult. How come it's easy? No, guys, it's very easy. The first shloka starts with dharma. And the 700th, the last word is mama. So mama dharma is the whole Bhagavad Gita. What is my duty is Bhagavad Gita. In such a simple way, he explained the whole thing. And the first word is dharma, and the last word of Bhagavad Gita, if you see, is mama. So mama dharma, my duty towards my father, towards my mother, towards my nation, towards my God, towards my son, towards my whatever you ask. So that is Bhagavad Gita. तो वो जब उन्होंने मुझे समझाया, it became so easy to render Bhagavad Gita, because everywhere in Bhagavad Gita they talk about, Krishna has explained what is your duty. Arjun, what is your duty? Why you are thinking about yourself? Why you are thinking about the relationship? What is your duty? Do your duty. तो मैं समझता हूं कि बाबा ने इतना कुछ छोटे शब्दों में सिखा देते थे कि हम लोग जिंदगी भर his knowledge is going to be with us. He is going to be with us. He is not really gone. I was performing there this birthday when he was not there. There were more people than last year. When Baba was present there, I felt this time there were more crowd. And when they are going to, अभी उनकी मूर्ति वहां लगाने वाले हैं, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा. You will see, like जैसे शिरडी में भीड़ पे भीड़ चलती चली आ रही है, वैसे पुट्टपर्थी में होगा. क्योंकि लोग दर्शन करने आएंगे, पहले बाबा के दर्शन करने आते थे, अब उस मूर्ति के दर्शन करने आएंगे जिसमें बाबा विराजते हैं. तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ. पंडित जी, आपका भी शुक्रिया अदा, आपने इतनी देर हमारे साथ बैठ के हमें शक्ति दी. जितने विद्वान यहाँ बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम है. एंड वेरी सून we will have a bhajan session here sometime in September, October when I come. फिर करेंगे कि हाँ भजन का प्रोग्राम करेंगे, आप सबको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे और एक सुंदर फिर कहीं अरेंज करेंगे अपना साईं भजन का प्रोग्राम भी. तो तैयार रहिए, आइएगा जरूर. थैंक यू. Brothers and sisters, the combination of success and humility is very rare. And I'm sure you will all agree that Swami not only bestowed great success on Anup Jalota ji, but he also gave him the strength to conduct himself with humility and devotion. I would like all of you to know that coming to the satsang today was not very easy for Sri Anup Jalota, and I have no doubt he came here only for his love for Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Thank you very much. पिता
ಮರಿಯಂತಯು ನೀವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮರಿಯಂತಯು ನೀವೆ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಗೇಂದ್ರಾಶಯನ ಓಂ ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಜಯ ಶಿವ ಸಾಯಿ ಮಹಾದೇವ सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंगको मंगल आरती अंगको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की, साई माता की।